Good afternoon, everyone. Welcome to the session. Hi, Sanjeet. Hi, Rajesh. Hi, Yogya. Hi, Robin. Hi, Ragyam. Hi, Ashwant. Hi, Shruti, Srishti. Hi, Karthik, Parth. Welcome all of you to the class. Hi, Nikhil. Yeah, good afternoon, everyone. Good afternoon. Yeah, guys. So, I'm sure that you are ready for the mock analysis, right? सो मॉक एनालिसिस में क्या होता है? मॉक एनालिसिस में डिस्कस क्या करेंगे? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन? द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज नॉट कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस. द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर इज हाउ टू स्कोर, हाउ टू स्कोर मोर with the available knowledge, with the available knowledge, right? That is the target, guys. मतलब हमारे पास जितनी नॉलेज है, बस उतनी ही नॉलेज से हम ज्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं? दैट इज द टारगेट ऑफ द सेशन. हाउ टू स्कोर मोर विद द अवेलेबल नॉलेज, राइट? सो इट मीन्स दैट कि हमारा टारगेट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे. वी विल बी सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस ऑल्सो. काफी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें से, बट हमारा टारगेट क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है. सेशन का टारगेट क्या है? सेशन का टारगेट है कि आपको नंबर कैसे लाने हैं मॉक टेस्ट में. हाउ टू गेट अ गुड स्कोर इन अ मॉक टेस्ट. दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न. सो गाइस, आई एम सीइंग लॉट ऑफ न्यू फेसेस इन द क्लास. बहुत सारे लोग हैं जो आज पहली बार मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं. So guys, for all of you, those who are coming to the class for the first time, let me introduce myself. Guys, मेरे इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे. Yeah, Utkarsh, we will discuss. My name is Praveen Tyagi. I am electronics engineer plus MBA. I also studied at IIM Lucknow. I have done 22 years. I have 22 years of teaching experience. 16 years in CAT. I am also an author. I write books on calculations and GDPI. Apart from this, my CAT score was also good, 99.51 overall with 99.97 in quant and 98.25 in LRDI. Fine, guys. And I have received Best Faculty Award in Career Launcher Delhi for 7 times. This is about my profile. And Unacademy पर भी मेरा रैंक ठीक ठाक है. Unacademy पे मेरा रैंक 3 है. I am rank 3 faculty on Unacademy. Fine, guys. So this is my introduction. Yeah. So now, guys, let's start the test discussion. Let's start the discussion of the test. Yeah, guys. So पहला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 that I will ask all of you. Right? How much did you score in the test? How much did you score in the quant section, in the QA section of the test? अगर आपने ये टेस्ट दिया है तो QA सेक्शन में आपका कितना स्कोर है ये आपको बताना है, गाइस. So I'll give you options. The options are I didn't take the test, didn't take the test. This is the first option that many of you might have done. Then 0 to 10, or your score is 10 to 20, or your score is 20 to 30, or your score is 30 plus. Right? So I want to know which category you belong to. You have to put your answer in the poll. So your time starts now. Please put your answer in the poll, guys. अगर आपका आंसर पोल में आएगा तो मैं आपके आंसर को बेहतर समझ पाऊंगा. I will be able to understand your answer in a better way. Okay, guys, very nice. 26% people have not taken the test. Okay, guys, 26% and 39% scored in this range. 19% score in this range, 9% in this range, and 11% in this range.
सो गाइस देखो, आपको देख के पता लग रहा होगा कि स्कोर अच्छा नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये है कि गाइस इनको जोड़ो, इनकी परसेंटेज क्या है। अराउंड 70% ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिलो 30% मार्क्स, राइट। इसका मतलब है कि 70% लोगों के नंबर जो हैं वो 30 से कम आए हैं। सो गाइस, अगर मैं आपको, इफ आई टेल यू अ मेथड ऑफ गेटिंग अ स्कोर ऑफ 30 प्लस स्कोर, if I tell you a method of getting 30 plus score, it means that will be a good improvement for you, right। इंप्रूवमेंट क्या होगी? अगर मैं आपको 30 प्लस स्कोर लाने का तरीका बता दूं आपकी अवेलेबल नॉलेज से, जो आपको आता है उसी की बात कर रहा हूं, कुछ नया नहीं। What from whatever you know, I'll make you score 30 plus, so that will be an improvement. Fine guys, so आज की क्लास में हमारी कोशिश होगी 30 प्लस स्कोर लाना है। So to get this score, we have to only do 11 to 12 questions. If we are able to select 11 to 12 easy questions, then we will get this score. Right guys? So chalo, let's start. Let's start. So what should be the strategy for the test? Strategy क्या होनी चाहिए टेस्ट के लिए? I will discuss this after discussing few questions. After discussing few questions, I will discuss the strategy. ठीक है? पर क्या होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी। देखो, अगर आपको कोई भी बैटल जीतनी है, इफ यू वांट टू विन एनी बैटल इन लाइफ, सो देयर आर टू वेज ऑफ विनिंग द बैटल, आइदर इज बाय स्ट्रेंथ और बाय स्ट्रैटेजी, राइट, और बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो गाइस, जो मॉक एनालिसिस आज का है ना, वी विल फोकस ऑन स्ट्रैटेजी, दिस विल बी द फोकस। हमारा फोकस आज स्ट्रैटेजी के ऊपर होगा, हाउ टू डेवलप स्ट्रैटेजी, राइट। यश, रिफ्रेश योर स्क्रीन। आई थिंक आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, प्लीज रिफ्रेश योर स्क्रीन। सो द बैटल, इफ यू वांट टू विन द बैटल गाइस, so you have to either have strength or strategy. So today's class will be focusing on strategy, राइट। तो क्या स्ट्रैटेजी हमें करनी है स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए? सो यू आर डूइंग क्लासेस, यू आर ऑलरेडी डूइंग क्लासेस ना, सो लेट्स डिस्कस अबाउट स्ट्रैटेजी। या हाय गौरव। चलो गाइस, सो लेट मी कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आज टेस्ट का पहला क्वेश्चन था, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। कैन यू डू दिस क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन इज इजी, दिस कैन बी डन विदाउट पेन, and that too in a time of 10 seconds. इसको आप बिना पेन के 10 seconds में कर सकते थे गाइस, राइट? यस गाइस, यस। सो लेट्स डू इट, लेट्स लर्न हाउ टू डू दिस क्वेश्चन विदाउट पेन इन 10 seconds. सो गाइस देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 72.8%। सो यानी कि वॉल्यूम V था, 72.8% बढ़ गया, so it means it is increased by 72.8%. It means it will become 1.728 times. So volume becomes this much times. So volume of a sphere is how much? Normally 4 by 3 pi r cube. This is the formula for volume of the cube, right? So volume is proportional to the cube of the radius. So I can say the radius of cube will become 1.728 times the radius cube. So 1728 is a cube of 12. Everyone knows this. 1728 is the cube of 12. So can I say that the radius becomes 1.2 r times? So when your radius is becoming 1.2 times, what is he asking you? What volume increased by this, then the surface area increases by how much? So surface area is how much? It is 4 pi r square for a sphere. So it means the square of the radius will become 1.2 square, that is 1.44 r square. So it means your surface area becomes 1.44 times. So the increment is nothing but 44%. So answer will be option B, 44% guys. So that's all.
सो बट दिस कैन बी डन मेंटली विदाउट पेन. हाउ? आई विल टेल यू. सुनिए, दोबारा बता रहा हूं मैं, शॉर्टकट से बता रहा हूं. यस, आई एम टेलिंग यू अ वेरी गुड शॉर्टकट गाइस, लिसन केयरफुली. वॉल्यूम मतलब रेडियस का क्यूब की बात कर रहा है. सरफेस एरिया मतलब रेडियस का स्क्वायर. तो रेडियस का क्यूब इतना बढ़ गया, तो इसका मतलब रेडियस 1.2 आर का क्यूब है ना ये, तो 1.2 टाइम्स हो गया. तो ये स्क्वायर करेंगे तो 1.44 होगा. कोई भी चीज 1.44 होगी तो 44% बढ़ेगी. डायरेक्टली कर सकते हैं हम, तो इतना करने की जरूरत नहीं है. I explained you all this so that you can understand the concept. But otherwise, it's very simple, guys. R cube and R square. So R cube is 1.1728 हो गया ना, तो 12 का क्यूब हो गया भाई. तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 44% बढ़ गया. दैट्स इट. फाइन गाइस. या संगिक, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना उस टाइम पे कमेंट मत डालो. जब मैं आपको कुछ समझा रहा हूं तो उस टाइम पर मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा. राइट? थैंक यू अदावित, थैंक यू सो मच. सो गाइस, अब ये देखो, अगर आपको सही टेक्निक आती है, सो द टेक्निक, द शॉर्टकट दैट यू नो, दैट हेल्प्स इन द पेपर. एक्चुअली दैट हेल्प्स. सो गाइस, इसीलिए मतलब थोड़ी सी स्ट्रेंथ वाली बात काम करेगी, तो टेक्निक से हमने फटाफट कर दिया इसको. थैंक यू विकास. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? This is the next question, guys. The watermelon question, question number 2. Can you read this question? All of you read this question and try this question for 1 minute. 1 मिनट इसकी कोशिश करिए, रीड करिए इसको दोबारा से. हम इसको अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है. फाइन गाइस, ऑल ऑफ यू रीड क्वेश्चन नंबर 2 एंड ट्राई दिस वन. जिसने नहीं करा था पेपर में वो भी एक बार रीड करो, और जिसने पेपर ही नहीं दिया था वो भी रीड करो इसको एक बार. Very good, David. We will do it with a shortcut. Let's see if it helps you. So guys, this question can be done in 30 seconds. This question can be done in 30 seconds, and that too without pen. Right? This is also very easy question. Very good, David. That's wonderful to know. Now see guys, कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? 1000 kg का वाटरमेलन है, उसमें 99% वाटर होता है एंड देर इज 1% बल्क. बल्क मतलब जो बच गया उसको कुछ भी कह सकते हो आप, है ना? आई एम कॉलिंग इट बल्क. राइट? सो इन अ वाटरमेलन we have a 1000 kg watermelon which has 99% water and 1% bulk. So guys, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? What is the concept? The bulk remains constant. That is the concept. मतलब अगर वाटरमेलन में से पानी उड़ जाएगा ना, अगर वाटरमेलन में से पानी उड़ जाएगा, तो पल्प पार्ट, व्हाट यू कॉल एज पल्प और बल्क, दैट पार्ट विल रिमेन सेम. इज इट फाइन? मतलब अगर तरबूज में से पानी उड़ गया तो पल्प की क्वांटिटी तो नहीं उड़ी ना, तो पल्प इज सेम और व्हाट यू कॉल एज बल्क इज सेम. सो 1000 kg में 1% is bulk. So what is this 1% equal to? 1% of 1000 is 10 kg. So ये 10 kg वाली चीज कांस्टेंट रहेगी. ये 10 kg वाली चीज कांस्टेंट रहेगी. तो अब क्या हुआ है? वाटर कंटेंट हैड ड्रॉप टू 98%, यानी कि वाटर कंटेंट हो गया 98%, है ना? तो बल्क परसेंट विल बी 2%. राइट? सो गाइस, व्हाट इज द रिडक्शन इन द वेट ऑफ द वाटरमेलन? कितना वाटर का वजन कितना कम हो गया गाइस? सो वेरी सिंपल नाउ गाइस,
Very simple now. Now 2% will be 10 kg. Now this 2% will be equal to 10 kg. So final weight क्या होगा? 2% इतना है तो 100% क्या होगा? 500 kg. If 2% is this, then 100% will be how much? Multiplied by 50. So 10 kg multiplied by 50 will be how much? That will be 500 kg. तो यानी कि 1000 किलो का तरबूज 500 किलो का रह गया. So it means that guys, the reduction in the weight is 500 kg, option number D. I hope this is fine, right? यानी कि फंडा क्या लगाया हमने ये बताओ. तो गाइस यू कैन डू दिस क्वेश्चन रियली फास्ट. मैं दोबारा समझाता हूं जल्दी से एक बार आपको. जल्दी सुनिए. वन बल्क रिमेन्स कांस्टेंट. Bulk remains constant, yes or no? So I am using the funda of bulk here. So the bulk is 1% that remains constant, that is 10 kg. So bulk remains constant. So now when water becomes 98, bulk becomes 2%. So 2% is 10 kg. So in that case, what will be 100%? 100% is 50 times of 2. So 50 times of 10 will be how much? 500. तो यानी कि तरबूज वाटरमेलन 1000 की जगह 500 का रह जाएगा. So what is the reduction in the weight? 500 kg is the reduction in the weight. That's all guys. You can do it so fast. Now guys, देखो हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए अभी. तो मतलब क्या समझ आया? इस बात से समझ क्या आ रहा है? समझ ये आ रहा है कि क्वेश्चंस कैन बी डन इफ कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. नंबर वन, पहली कंडीशन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. नंबर टू, you should know the shortcuts. You should know the shortcuts and you should do some practice. थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी है. तो गाइज अगर ऐसा होगा then you will be able to solve. अगर ये तीनों कंडीशन हो गई ना, then you will be able to solve questions in 30 seconds or 1 minute very fast. So your speed will be very fast. So guys यही पढ़ाई करने का सही तरीका है भाई. पढ़ाई करने का सही तरीका यही है भाई. यस. सो गाइस नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है टॉयज वाला. अब देखो मैं आपको दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए. नाउ आई विल डिस्कस द स्ट्रैटेजी पार्ट विद यू. स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पेपर में. लेट अस डिस्कस द स्ट्रैटेजी. अब हम क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर लेंगे. क्वेश्चन हमने दो कर लिए. शॉर्टकट कैसे करना है बता दिया मैंने आपको. स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे. तो स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हाउ टू चूज अ क्वेश्चन. मतलब आपको चूज करना है ना कि कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है. सो यू हैव टू चूज अ क्वेश्चन. सो गाइस दिस क्वेश्चन इज अ 4 लाइनर. यू कैन सी दिस क्वेश्चन हैज 4 लाइंस. सो दिस इज अ 4 लाइनर. सो यू कैन डू इट लेटर. छोड़ सकते हैं आप इसको, बाद में करें पेपर में, टाइम बचता है तो छोटे क्वेश्चंस हैं. इफ द क्वेश्चन इज स्मॉल डू इट फर्स्ट. If the question is lengthy, do it later. This can be a strategy of choosing a question. So guys, let's go to the next question now. अब ये क्वेश्चन है b square is equal to ac है, base 10 है. अच्छा ये ठीक लग रहा है, देखो छोटा भी है. इस क्वेश्चन इज स्मॉल. तो अगर आपको आता है तो आप इसको कर सकते हो और नहीं आता तो नहीं कर सकते हो. सिंपल सी बात है. सो अगर आपको एक बेस सिस्टम आता है तो आप कर सकते हो. सो यू कैन दिस क्वेश्चन कैन डेफिनेटली बी डन इफ यू नो द कॉन्सेप्ट. नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करेंगे हम लोग? कैंडल्स वाला. Two candles of same length and same size both burn at uniform rate. If the first burn for 5 hours and second burns for 3 hours, both the candles are lit together after how many hours? The length of first candle will be 3 times of the length of the other. So this is doable. क्या फंडा है इसका? यूज ऑप्शंस. ऑप्शंस का इस्तेमाल करके करिए आप इस क्वेश्चन को. बहुत जल्दी आप कर लेंगे. राइट गाइस, याद आवे हम करेंगे इस क्वेश्चन को. ऑल ऑफ यू रीड द क्वेश्चन, एक बार पढ़ लो सब लोग. या हर्षिल गाइस आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम. 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं. प्लीज रीड द क्वेश्चन. या प्लीज रीड द क्वेश्चन ऑल ऑफ यू.
रिमेनिंग पार्ट वेरी गुड अदावित। सो गाइस वी विल डू दिस विद क्वेश्चंस विद द ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शन के साथ करेंगे हम इसको। या अगर आप इसको दो, लेट द आंसर बी टू, लेट द आंसर बी टू, तो 2 घंटे के बाद ये क्या होगी, 2 घंटे के बाद ये 40% जल जाएगी और 60% बचेगी, है ना। और ये 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद ये वाली कैंडल 66% जल जाएगी और 40% बचेगी। सो गाइस, इज द लेंथ टाइम्स? नो, सो ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर। लेंथ इज 3 टाइम्स? नो, सो आंसर इज नॉट ऑप्शन ए। फाइन, ओके। अगर 3 आवर्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 3 आवर के बाद तो ये खत्म ही हो जाएगी कैंडल, 3 आवर के बाद तो कैंडल ही खत्म हो जाएगी ना, तो 3 टाइम तो होगा ही नहीं होगा। सो लेट अस ट्राई दिस 2.5 आवर नाउ। 2.5 घंटा ट्राई करते हैं, अगर ये आंसर नहीं निकला तो डेफिनेटली 1.5 आंसर होगा। सो 2.5 घंटे बाद दिस विल बी हाफ, 50%, और दिस विल बी 2.5 घंटे में कितनी होगी ये, 16%। मतलब 2.5 घंटे बाद ये 5/6, 2.5 घंटा जल गई है और आधा घंटा बचा है, तो यानी कि ये 1/6 बचेगी, तो 1/6 is 16.6%, तो 16.6% का 3 टाइम्स ही तो है ये, तो ये देखो 3 टाइम्स आ गया। सो आंसर इज ऑप्शन सी। सो इस क्वेश्चन का बेस्ट तरीका है यूज ऑप्शंस। फाइन गाइस, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन टकराता है, सो द बेस्ट फंड ऑफ डूइंग सच क्वेश्चन इज यूज ऑप्शंस। फाइन गाइस, चलो वंडरफुल। नाउ ये क्वेश्चन फंक्शंस का है, मैं एक बार पढ़ूंगा जरूर, पर मेरी एडवाइस है पढ़ने के बाद इसको आप छोड़ सकते हैं अगर समझ नहीं आ रहा तो, यू कैन लीव द क्वेश्चन। या हर्ष, आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन से ट्राई करना हर्ष, आ जाएगा आपका, इतना मुश्किल नहीं है, आप कर लोगे। हाँ, कैंडल वाला विकास इतना मुश्किल नहीं है भाई, तुम कहां फंस गए हो। चलो मैं बताता हूं, एक बार दोबारा सुनो। अच्छा, मैं आपको सही आंसर से बताता हूं। 2 कैंडल है देखो मेरे पास, एक ये रही और एक ये रही, 2 कैंडल है मेरे पास। तो ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये 5 घंटे में जलती है और ये 3 घंटे में जलती है। ठीक है, ये दिया हुआ है मेरे को, तो मैं 2.5 घंटा ऑप्शन लेके चल रहा हूं, 2.5 आवर्स आई एम टेकिंग। ओके, सो 2.5 आवर्स में ये कैंडल 50% जल जाएगी, 50% नहीं जलेगी। सो 50% विल बी द अनबर्न्ड पार्ट, और ये वाली कैंडल 2.5 घंटे में 2.5 आवर्स के बाद हाफ आवर की बचेगी ना। सो हाफ आवर इज व्हाट ऑफ 3 आवर्स, हाफ आवर्स इज 1/6 ऑफ 3 आवर्स, तो 1/6 बचेगी ना, ये 1/6। तो और ये कितनी बच रही है, 50%, मतलब ये हाफ बच रही है, तो ये इसका 3 टाइम्स है कि नहीं है, तो इसीलिए आंसर है ऑप्शन सी। खत्म, बस यही करना था। मतलब ये 1/6 जल गई, 1/6 बची है और ये हाफ बची है, तो 1/6 का 3 टाइम्स हाफ, दैट्स इट। अभी आया समझ? तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है, और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप जरूर आप ट्राई करना, आपको आ जाएगा क्लास के बाद, इतना मुश्किल नहीं है ये, इट्स नॉट डिफिकल्ट। चलो गाइस, नेक्स्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन के बारे में क्या विचार है भाई, छोड़ दो इसे फिलहाल, बाद में करेंगे। 7th क्वेश्चन, प्राइस ऑफ प्राइस इंक्रीज है 40%। हाँ, तो ये इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर है, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। पढ़ते ही पता लग गया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन गलती से ही आता है पेपर में, दिस इज द स्टैंडर्ड क्वेश्चन।
या तो ये सबका सही होना चाहिए था। देखो, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। फाइन, वी नो this is the funda. So price increases by 40%. Find the percent reduction in consumption of the family so that the family decreases, expenditure decreases by 16%. तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ठीक है, इसको लगा सकते हो आप, इससे आपका आंसर जल्दी आएगा। सो नेट डिक्रीज इज 16%, so you can write it as minus 16 on this side, and the increment is 40, so 40 plus b plus 40 into b by 100। so एक जीरो काट देंगे, 0.4b और 40 प्लस ये आएगा b, ये b है। सो ये आपका आ गया, ये उधर ले जाएंगे। सो -56 इज इक्वल टू 1.4 b आ गया। तो b की वैल्यू आ गई -56 डिवाइडेड बाय 1.4। सो 14 4 are 56, this is like -40। so decrement is 40%, that is why the answer is 40%। याद अभी तो आप वैसे भी कर सकते हो, पर ये स्टैंडर्ड तरीका बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी हो जाएगा। फाइन, इट्स टू इजी टू डिस्कस टू मच, सो दैट्स फाइन, आप इतना करके कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। फाइन गाइस, चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑड्स इन फेवर, अगेन गाइस दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, मगर अगर आपको ये आता है तभी आसान है, अगर आपको ये नहीं आता तो ये मुश्किल है आपके लिए, राइट। सो इजी इफ यू नो द टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन परसेंटेज वाला है, किस टॉपिक से है? द टॉपिक इज परसेंटेज। तो गाइस इसको ना हम बाद में करेंगे, व्हाई? बिकॉज ये टाइम टेकिंग है तो इजी, बट दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, और अगर हमारा टाइम खत्म हो गया ना तो हम पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, टू बी डन लेटर, करना है बट नॉट नाउ, लेटर। तो गाइस क्वेश्चन देखकर आइडेंटिफाई करना है हमको कि हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला है 10th। द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 3 ऑफ देम आर दिस, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर फॉर द फोर्थ साइड? तो कुछ ऐसे कर सकते हैं कि एक बीच की साइड 10 है, ये साइड 20 है और ये साइड 5 है। तो गाइस ये साइड कितनी होगी, ये साइड कितनी होगी, ये वाली साइड, ये हमको देखना है, राइट। सो गाइस एक पॉसिबल केस ये होगा कि इसको लगभग सीधा ही बना दो आप ऐसे, 20 10 और 5, इफ दे आर इन स्ट्रेट लाइन देन द लेंथ विल बी लार्जर ना, तो कितना होगा जोड़कर आएगा तो 35। सो अगर इसकी लेंथ x है, सो आई कैन से x विल बी लेस देन 35, 35 से छोटा होगा, 35 हो गया तो ये फ्लैट हो जाएगा और कुछ बनेगा ही नहीं, है ना। अच्छा, ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर देखते हैं। सो गाइस मैं इनको मिलाने की कोशिश करता हूं, मतलब लीस्ट बनाना है ना मेरे को। लीस्ट बनाने के लिए गाइस ये वाला केस बनेगा, रुको थोड़ा दिमाग लगाना होता है। 5 इधर बनाएंगे, 10 इधर बनाएंगे और 20 वाला बिल्कुल इधर बनाएंगे, जरा सा ऊपर बनाकर 20 वाला ये बनाएंगे 20। सो गाइस अगर ये स्ट्रेट लाइन में होंगे ना तीनों, सो इन दैट केस दिस लेंथ शुड बी 5, तभी होगा। सो इट शुड बी मोर देन 5, देन ओनली यू विल हैव अ क्वाड्रिलेटरल। इट शुड बी मोर देन 5, is it fine? So it should be lying between 5 and 35, right? It should be lying between 5 and 35. So these are 29 values, finished। 5 और 35 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? 29, that's it guys। So question was easy, बस थोड़ा दिमाग लगाना था और कुछ भी नहीं है। I hope this is clear to everyone। वेरी नाइस गाइस, चलो आगे चलते हैं। 5 कैसे आया? विकास बना के देखो ना, ऐसे ही वाली फिगर बना के देखो। मैंने स्ट्रेट लाइन में बनाने की कोशिश करी,
5 और 10 ऐसे बनाया और 20 को मैंने ऐसे बनाया, मैंने बड़ा छोटा क्वाड्रिलेटरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो छोटा क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनेगा ना, ये 5 बनाओ, ये साइड 10 हल्की सी ऊपर बनाना, हल्की सी 10 है ना, और ये साइड भी हल्की सी ऊपर बनानी है, हल्की सी। तो ये साइड क्या है, 20 है। So in the worst case, when it will be a flat figure, this will be 5. So this should be more than 5 na? If it is 5, it will be flat. So it should be more than 5. तभी हल्का सा quadrilateral बनेगा, छोटा सा पतला सा quadrilateral बनेगा. Right guys? So again it was easy. थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस. That's it. Yeah. So from 6 to 34, there can be how many integers? 29. So answer is 29. That's why. Okay. चलो guys. Next question. टू वेराइटीज ऑफ मिक्स करना है। अच्छा तो गाइज ये इजी क्वेश्चन है, बट 4 लाइनर है, 4 लाइनर, तो शुरू में मत करो, डू इट लेटर, क्योंकि शुरू में ना आपको नंबर लेने हैं। देखो गाइस एक स्ट्रैटेजी याद रखो, टेस्ट में फर्स्ट 15 मिनट्स, पहले 15 मिनट में आप क्या करते हो ना टेस्ट में, ये डिसाइड करता है कि आपका स्कोर कितना आएगा। सो इन द फर्स्ट 15 मिनट्स you should be able to choose 15 easy questions and do them. अगर आपने ये काम कर लिया ना तो आपने समझ लो पेपर की बैंड बजा दी है, और अगर आपने ये काम नहीं किया तो पेपर आपकी बैंड बजा देगा। मतलब ये है कि बैंड तो बजना ही बजना है, चाहे तुम पेपर का बैंड बजाओ या पेपर तुम्हारा बैंड बजाए। राइट गाइस? सो गाइस दिमाग से काम करो, किसी भी लंबे क्वेश्चन में पहले 15 मिनट में इलझना नहीं है। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक। फाइन, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द टॉपिक ऑफ मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। राइट? वीएआरसी का स्ट्रेटजी अलग है हर्ष, उसको यहां मिक्स मत करो, अभी मेरे को मैथ्स पढ़ाने दो। ओके सो गाइस पहले 15 मिनट में आपको 15 इजी क्वेश्चन चूज करने हैं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं अभी, क्योंकि मैं अगर इसमें इलझ गया ना तो मैं 15 मिनट में 15 क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे पक्का पता है। हाँ ये इजी है अदावत, फिर भी बाद में करना है। तुमको नंबर ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए ये बताओ। अगर आपने 15 क्वेश्चन कर दिए ना तो 15 मिनट में ही आपके 45 मार्क्स आ गए। एक आध गलत भी हो गया तो भी 40 नंबर तो आ ही गए आपके। अगर 2 गलत भी हो गए 45 मार्क्स आपके आ गए। सोचो ना क्या किया है आपने। राइट गाइस? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चंस आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे पर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। गाइस क्वेश्चंस विल अट्रैक्ट यू, तुम्हें लगेगा ये तो आसान है, मेरे को आता है, अभी कर देता हूं इसे, बट गाइस आप अपना मकसद भूल गए। दिस इज कॉल्ड फॉलिंग इन लव विद क्वेश्चंस। यू डोंट हैव टू फॉल इन लव विद क्वेश्चंस, यू हैव टू स्कोर हाई। अरे नंबर ज्यादा लाने हैं ना तो नंबर ज्यादा लाने वाले काम करो। तो क्वेश्चन को पढ़ो और सेंस करो, करना है नहीं करना है। दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग द पेपर गाइस। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज t square is equal to at plus b, a and b are integers, then t cube is never equal to। देखो भाई पहली नजर में आप मेरे को बोलो तो ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा, अनेबल टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है। सो लीव इट, अनेबल टू अंडरस्टैंड, सो लीव दिस क्वेश्चन, बाद में करेंगे इसको, अभी दिमाग नहीं चल रहा है। जब भी क्वेश्चन में दिमाग नहीं चले ना, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद 10 सेकेंड्स के अंदर स्ट्राइक ना करे कि करना क्या है तो लीव इट। सो गाइस एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना आपके अंदर से बहुत तरह की आवाजें आ सकती हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपके मन से आवाज आ रही है हो सकता है, राइट, या हो जाएगा, या नहीं होगा, हो सकता है, हो जाएगा, नहीं होगा,
ऐसी आवाजें आती है ना क्वेश्चन को पढ़ के, राइट। हो सकता है, हो जाएगा, नहीं हो गया, नहीं होगा, हो गया। तो इस तरह की आवाजें आती हैं आपके मन से, ठीक है ना। सो गाइस, इनमें से कौन सी आवाज में क्वेश्चन करना चाहिए, मैं ये पूछना चाहूंगा। कौन सी आवाज इनमें से आपको सुननी चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड शुड यू लिसन टू डू द क्वेश्चन? यू शुड लिसन टू ओनली द लास्ट साउंड, हो गया। अगर ये आवाज नहीं आ रही तो क्वेश्चन छोड़ दो। लिसन टू दिस साउंड, हो गया। क्वेश्चन पढ़ते ही अंदर से आवाज आनी चाहिए, हो गया। अगर ये आवाज नहीं आई, ये फीलिंग नहीं आई, तो मतलब क्वेश्चन छोड़ दो, बाद में वापस आ जाना ना। अगर हो जाएगा तो कर लेना, बट लेटर। हो सकता है, बिल्कुल नहीं करना। नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना। सो सिर्फ एक ही आवाज आपको सुननी है, हो गया। तो मेरे को इस क्वेश्चन को पढ़कर हो गया वाली आवाज नहीं आई। आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन गाइस, ये हो गया वाली आवाज मुझे नहीं आई। तो क्या करना है? तो नहीं करना है। फाइन गाइस, नहीं करना है, फिर बाद में करेंगे। सो लिसन टू द साउंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हो सकता है भी नहीं करना है। हो सकता है मैं सौम्या 15 मिनट के बाद करना ना, 15 मिनट्स के बाद। देखो, हो जाएगा में लेटर करना है, हो सकता है में नहीं करना है, बिकॉज आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा यार। योर टाइम इज वेरी प्रेशियस। समझने की कोशिश करो भाई, आपका टाइम खराब हो जाएगा। वो आप नहीं कर सकते पेपर में। अगर आप टाइम खराब करोगे तो बढ़िया नंबर नहीं ला सकते हो, फंस जाओगे आप। तो इसलिए बहुत संभल के चलना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, यू कैन मार्क द क्वेश्चन एंड गो ऑन। फाइन गाइस, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A spider eats 3 flies a day. हाँ, कैन डू दिस, कर सकते हैं। कैन डू दिस क्वेश्चन लुक्स इजी, बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद प्रोबेबिलिटी देन डोंट डू। If you are comfortable with probability, this question is easy. If you're not comfortable with probability, leave the question. So it depends upon the individual now for this question. Yeah, this question, what to do this? 14th कैसे करेंगे? ये निकालना है ना मेरे को, 14th क्वेश्चन। यस, तो गाइस, ये अगर आप, इफ यू आर कंफर्टेबल विद एपी, इफ यू आर कंफर्टेबल विद एपी, then do it, else leave it. So it depends upon your comfort level. या सीरीज का क्वेश्चन है भाई, ये सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बट इफ यू आर कंफर्टेबल देन ओनली यू हैव टू डू, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल लीव इट। आपका किस टॉपिक के साथ कंफर्ट लेवल कैसा है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना भाई। या रवि करेंगे, लेट मी विजिट ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले मैं आपको सारे क्वेश्चन एक बार दिखा दूं, डिस्कस कर लूं कैसे हैं। क्योंकि मॉक एनालिसिस का मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। मॉक एनालिसिस का मतलब है कि डिसाइड करना कौन सा करना था, कौन सा नहीं करना था, लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन के बारे में आपका क्या ख्याल है? यू हैव 2 bags ऑफ मार्बल्स। So again, probability question. So if you are comfortable with probability, then yes, otherwise no. या तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, व्हाट इज योर कंफर्ट लेवल, अदरवाइज लेटर। दिस क्वेश्चन, कॉनिकल वेसल, या सो दिस इज इजी, दिस इज इजी एंड डूएबल। हालांकि थोड़ा लंबा है, बट ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से समझ में आ रहा है। इस पेपर का लेवल मॉडरेट है भाई। द लेवल ऑफ दिस पेपर वॉज मॉडरेट। इट वॉज नॉट इजी, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट। फाइन, या
ज्योमेट्री नॉट कंफर्टेबल, देन यू हैव टू स्टडी दीक्षा, पढ़ना पड़ेगा आपको, ज्योमेट्री आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होता ज्योमेट्री। फाइन गाइस, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है डोमेन निकालने वाला, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस ना। सो गाइस, अगर आपको कंफर्टेबल है तो यूज ऑप्शंस। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। यूज ऑप्शंस, बट फटाक से आंसर आएगा। या साइन इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 टू द बेस 2। देखो मैं बताता हूं कैसे करना है। सो गाइस, दिस इज द क्वेश्चन। डोमेन बताना है, डोमेन क्या होता है। सो व्हाट इज डोमेन? द वैल्यू एक्स कैन टेक, द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट आर पॉसिबल इज कॉल्ड डोमेन। तो इसका डोमेन क्या होगा, एक्स क्या हो सकता है? देखो सारे ऑप्शन को ध्यान से देखो आप, क्या फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑप्शंस? द डिफरेंस इज -2 से -1 और 1 से 2 आंसर है। बस ये देखना है कि ये वैल्यूज होंगी या नहीं होंगी, ब्रैकेट्स देखने हैं बस, दैट्स इट। सो कैन आई पुट एक्स एज 1? कैन आई पुट एक्स एज 1? x इज इक्वल टू 1, कैन आई पुट इट? लॉग हाफ आ जाएगा। सो अगर आप 1 डालेंगे तो लॉग हाफ आएगा। हाफ विल बी व्हाट? 2 की पावर -1, -1 बार साइन इनवर्स -1 एग्जिस्ट करता है। सो कैन यू पुट x इज इक्वल टू 1? द आंसर इज यस। सिमिलरली आई कैन पुट -1 ऑल्सो, -1 डाल सकता हूं, 1 डाल सकता हूं तो 1 भी डाल सकता हूं ना। सिमिलरली कैन यू पुट x इज इक्वल टू 2? 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4, 4 अपॉन 2 इज 2, 2 टू द बेस 2 इज 1। यस, तो 2 डाल सकता हूं, यस, -2 डाल सकता हूं, यस। सो ऑल आर पॉसिबल, तो सब में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द आंसर। सब में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा ना। तो गाइस यूज ऑप्शंस, कुछ नहीं करना था, बस डाल के देखना है डाल सकते हैं या नहीं, बस हाँ या ना। सो गाइस, दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन इन द पेपर। पता नहीं लोग क्यों डर गए इससे और क्यों नहीं किया। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला कैसा लगा आपको? विकास, विकास ने डाउट पूछा है टॉपिक। विकास, अर्थमेटिक और एल्जेब्रा छाया हुआ है पेपर में। अर्थमेटिक और एल्जेब्रा का वेटेज ज्यादा होता है। अर्थमेटिक 30% से ज्यादा, एल्जेब्रा भी 30% से ज्यादा। तो अर्थमेटिक एल्जेब्रा इज मैक्सिमम वेटेज इन द पेपर। So these are the most important for CAT, most important topics. Yeah. So guys, this depends upon your comfort level. स्क्वायर की साइड 12 है, 6 ये रहा, 6 ये रहा, ये 6 है ना, और ये पूरा साइड क्या होगा 12। निकालना क्या है मेरे को? ए आर इज दिस इज दिस एरिया ऑफ द ट्राइंगल उस साइड्स आर आर एस एंड 12। तो यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो बस ये तो सिंपल है, हाफ इंटू 12, 6 इंटू 12, 72, 36 आंसर आ गया भाई, खत्म। सो क्वेश्चन वॉज वेरी इजी बट हॉरिबल, वेरी इजी बट लुक्स हॉरिबल। डर लगता है देखकर, है ना, कि पता नहीं क्या है इसके अंदर। सो गाइस, मैंने आपके सामने किया है, देखो गाइस, या इट वाज डिसेप्टिव एब्सोल्युटली। सो गाइस, अगर मतलब इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं है ना, एकदम लल्लू क्वेश्चन है। ट्राइंगल का एरिया पूछा हुआ है पर डरा रखा है, और एस ये वो पता नहीं क्या क्या बना दिया। राइट गाइस? यस। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो आपसे कुछ नहीं पूछ रहा था, वो आपसे इस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा था, है ना। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। सो हाफ इंटू 6 इंटू 12, 12 6 72, 72 का हाफ 36, खत्म हो गया। सो गाइस, क्या समझ आ रहा है आपको डिस्कशन से अभी तक? सो गाइस, स्कोरिंग इन अ मॉक टेस्ट इज ऑल अबाउट चूजिंग क्वेश्चंस। बहुत सारे लोगों ने तो ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं होगा।
इट्स ऑल अबाउट चूजिंग क्वेश्चंस गाइस। स्कोरिंग तभी आएगी, नंबर तभी आएंगे आपके जब आप बढ़िया क्वेश्चन चूज करोगे। सो गाइस राउंड लगाना है, राउंड वन। राउंड वन में आपको करना क्या है, 15 मिनट का टाइम लगाइए और 15 मिनट में 15 इजी क्वेश्चन ढूंढिए, 15 इजी क्वेश्चन ढूंढिए, फाइंड देम, सॉल्व देम, दैट्स इट। ये काम आपने कर दिया तो आपने समझ लो खड़े खड़े छक्का मार दिया। राउंड वन 15 मिनट्स, search for 15 easy questions, 45 marks in your pocket, you will be almost the topper of the test in 15 minutes, right? So मजा आया बोलो यस। सो गाइस स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टेस्ट में क्या करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। याद आवे, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, नो डाउट पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पर आसान है। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इट्स इजी, मुश्किल नहीं है भाई। चलो गाइस देखो, एबीसी वर्कर्स कंप्लीट दिस डेज रिस्पेक्टिवली, पर राउंड वन में तो नहीं करूंगा मैं इसे, 4 लाइन तो यही दिख रही है और 2 ये, दिस इज अ 6 लाइनर क्वेश्चन, सो नॉट टू बी डन इन राउंड वन, कैन बी डन इन राउंड टू। राउंड वन में नहीं करूंगा मैं इसको, आई विल डू इट इन राउंड टू, बिकॉज इजी है, पर नहीं करना यार, हो सकता है कि इससे भी इजी क्वेश्चन मेरे आगे वेट कर रहा हो और मैं उसको छोड़ दूं, सो वो तो सही बात नहीं है ना यार। इजी है पर छोड़ना नहीं है भाई। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्शन वोट्स, ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है ये, है ना? तो ये इजी होते हैं गाइस, दे आर इजी, बट यू हैव टू रीड 4 लाइन्स। सो आप इसको आप अगर इफ यू कैन रीड इट वेरी फास्ट तो आपके लिए राउंड वन है, इफ यू कैन नॉट रीड इट वेरी फास्ट देन इट इज नॉट राउंड वन। So it depends upon your ability of reading, right? Your reading speed and all, your comfort with the reading. A and B are the roots of this equation such that this is 10, then B belongs to the set what? हाँ ये आसान है भाई, ये बेसिकली डिफरेंस ऑफ द रूट्स है ना, दिस इज इजी। इसमें कुछ नहीं करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो आप, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी 100, so a square plus b square minus 2ab will be 100, so this will be a minus b, a plus b का होल स्क्वायर minus 4ab will be 100, कुछ ऐसा हो जाएगा ये, राइट? सो देखो दिस इज सम ऑफ द रूट, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, वैल्यू डाल दो सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट की, सॉल्व करने के बाद p की वैल्यू आ जाएगी और देख लेना कौन से ऑप्शन में वैल्यू है। सो दिस इज इजी, कैन बी डन इन राउंड वन। यस, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने पढ़ा है, सो गाइस इट इज वेरी इजी, यू कैन डू इट, फाइन गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 circles of radius 1 touch each other externally and they lie between the parallel lines, minimum possible distance between the lines। ये बहुत आसान है यार, बस देखने में लोग ज्योमेट्री के नाम से डरते हैं, पता नहीं क्यों। 3 सर्कल है ना, टच करते हैं, तो अगर वो 2 पैरेलल लाइन के बीच में हैं तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस चाहिए ना पैरेलल लाइन के बीच में। सो गाइस यू नीड दिस डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज व्हाट यू हैव टू फाइंड, फाइन। सो हाउ विल यू डू दिस, इसका रेडियस होगा r, रेडियस कितना है इनका 1, ये भी 1 होगा, इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दो ऐसे आप। सो डिस्टेंस देखो ये 1 है, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1 और ये भी 1। सो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकलेगा, ऊपर वाला 1 होगा, नीचे वाला 1 होगा और ये होगा हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस विल बी हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो 1 + 1 is 2 और हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है √3/2 टाइम्स द साइड, सो ये हो गई √3, तो आंसर आ गया 2 + √3, खत्म भाई, कुछ भी नहीं है, ऑप्शन ए आंसर है। सो गाइस अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, very easy, can I say it's very easy? Great guys, तो यार वही है ना, बहुत सारे लोग तो यहां तक पहुंचे ही नहीं होंगे पेपर में, वो मुश्किल क्वेश्चनों में शुरू में फंस गए।
है ना? तो इसमें मतलब क्वेश्चन ट्राई करने के बाद डिसाइड करो ना, पढ़ने के बाद, कि इजी है कि नहीं है। या मिलन, दिस इज हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होती है बताओ मेरे को। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल? √3/2 टाइम्स द साइड ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया ना साइड 2 वाला, बस √3/2 इंटू 2, यानी कि √3 आ गया, हाइट आ गया ना। बस खत्म खत्म, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन 3 लाइनर है, 3 लाइंस का है, पढ़ें क्या? हो सकता है कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं राउंड 2 में करूंगा इसको। इजी है बट टाइम कंज्यूमिंग है, सो आई विल डू इट इन राउंड 2, दैट्स व्हाई मैं नहीं करूंगा इसको राउंड 1 में। राइट, यस, लेटर, एकदम सही, एकदम सही जवाब। सो गाइस ये हो गया, उसके बाद ये वाला कैसे करेंगे? ये वाला ना आपको स्ट्राइक करके तो बड़ा जल्दी हो जाएगा, ये बहुत, ये अगेन वेरी वेरी इजी है, वेरी वेरी इजी एंड राउंड 1। कैसे देखो, p² इंटू q इंटू r³ इज 24 एंड p इंटू q² इज इक्वल टू 576। निकालना है PQR, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो गाइस एक काम करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो p³ q³ r³ हो जाएगा ना। दैट विल बी 24 इंटू 24², 576, 24² होता है ना। बस हो गया काम। तो PQR का होल क्यूब कितना हो गया? 24 का क्यूब हो गया। तो PQR की वैल्यू क्या होगी? 24, खत्म। यस गाइस, तो सारे आसान क्वेश्चन बाद में छुपे हुए थे लास्ट में। यस, 10 सेकेंड्स। तो अगर आप यहां तक पहुंचे नहीं तो नुकसान हो गया ना भाई। इसीलिए बोल रहा हूं, राउंड 1 में पूरा पेपर घुमा दो धड़ 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 करके। यस सौम्या, हाँ पोछा लगाना है या झाड़ू लगानी है। राउंड 1 15 मिनट पूरे पेपर में झाड़ू लगा दो, सारे आसान आसान क्वेश्चन कर लो। कॉन्फिडेंस कितना आएगा ये सोचो। अगर आपने 15 क्वेश्चन कर लिए ना 15 मिनट में, व्हाट विल बी द लेवल ऑफ योर कॉन्फिडेंस? इट विल बी अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। बट जो मैं बता रहा हूं ना, इसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा ये इतने आसानी से। या so guys, before I move on, let me tell you एक बड़ी बढ़िया इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको, ये सुन लीजिए। गाइस देखो, अनअकैडमी प्लस पे आप में से काफी लोग होंगे और कुछ लोग आने वाले होंगे। तो अनअकैडमी प्लस पे मैं 2 कोर्स लॉन्च कर रहा हूं। ये वाला बहुत बढ़िया कोर्स है, देखो, 68 क्वांट क्वेश्चंस ऑफ कैट 2017 विद शॉर्टकट्स। सो गाइस ये कल ही शुरू हुआ है, तो ये डेली क्लास होती है इसकी 11 बजे 11 PM। सो अगर आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, और ये वाला कोर्स स्टार्ट होने वाला है 18 मई से। बेसिकली ये अर्थमेटिक का कोर्स है विद शॉर्टकट्स, अर्थमेटिक कोर्स, कंप्लीट अर्थमेटिक कोर्स, एंड द टाइम विल बी 9:30 PM। तो गाइस अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करने का सोच रहे हो ना, तो कर लो। और पहले से अगर आप अनअकैडमी पे हो, इफ यू आर ऑलरेडी ऑन अनअकैडमी, देन गाइस यू कैन डायरेक्टली कम इनटू द क्लासेस, सीधा क्लास में आ जाओ। अदाविद के पास 2.5 महीने हैं। अदाविद बहुत है आपका सिलेबस। अदाविद हम चाहें तो 2 महीने में खत्म करा सकते हैं, 2 मंथ्स में वी कैन प्लान टू फिनिश ऑफ योर सिलेबस। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। अनअकैडमी का यही तो फायदा है यार। या चंदन, फुल सिलेबस का बैच बताता हूं मैं कैसे करना है आपको। आप मेरी डेली क्लास करो, देखो, डू माई क्लासेस डेली एट 9:30 PM फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने तक
लगातार मेरी क्लासेस 9:30 बजे करो, आपका सिलेबस क्वांट का खत्म, सिलेबस ऑफ क्वांट फिनिश्ड, राइट। एंड गाइस अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एलआरडीआई और वीएआरसी की बात करें तो इसके लिए एक मेरा बैच है, उसका नाम है परफेक्ट स्कोर बैच, परफेक्ट स्कोर बैच। दे वीकेंड बैच है, दिस इज अ वीकेंड बैच। सो गाइज आप एलआरडीआई और वीएआरसी इस बैच में कर सकते हो, परफेक्ट स्कोर बैच ढूंढ लो और कर सकते हो। इस पेज का ना स्क्रीनशॉट ले लो आप, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज ऑल ऑफ यू, एंड माय कोड इज पीटी सर 10, ये भी ध्यान से नोट कर लेना, जिसको ज्वाइन करना है वो जरूर लगाना भूलना मत भाई। दिस इज माय कोड, डिस्काउंट कोड, राइट। सो गाइज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज ऑल ऑफ यू। या गाइस चलो आगे आगे चलते हैं, आगे पढ़ाई करते हैं। सो फिर ज्योमेट्री है, इस क्वेश्चन को राउंड 2 में करेंगे हम, क्योंकि पढ़ने में और समझने में टाइम लग जाएगा। सो वी विल डू इन राउंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीक्वेंस का क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म इज 5, this is this much, n is a natural number, what will be the value of a50? हो जाएगा, कैन बी डन इन राउंड 1, हो जाएगा, इजी है, पढ़ने के बाद पता लगा कि आसान है, कर सकते हैं। फाइन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, p की वैल्यू है 1/4 माइनस रूट 15, इसको रैशनलाइज कर लेंगे और q को भी रैशनलाइज कर लेंगे और a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। सो गाइस हो जाएगा, राउंड 1 में कर सकते हैं, इजी है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ज्योमेट्री में टाइम लगता है, मुश्किल नहीं होती है, पढ़ के समझने में टाइम लगता है। सो गाइस अगेन 5 लाइन का क्वेश्चन है, तो क्या करना है, राउंड 2, 5 लाइन क्वेश्चन, राउंड 2 नहीं करना मुझे अभी। नेक्स्ट 29th 2 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय यूनिट डिजिट 6, हाँ ये राउंड 1 है, बिकॉज दिस इज बेसिकली ओनली 2 लाइन क्वेश्चन और इजी भी लग रहा है, पढ़कर आसान लग रहा है ना, पढ़ने के बाद समझ में आता है कि हाँ आसान है, नहीं है, 2 डिजिट नंबर का एक सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। फाइन गाइस, सो राउंड 1 राउंड 2 राउंड 1 आसान क्वेश्चन है। देन बीगियो ये कि इतना है तो इसका वैल्यू बताओ। गाइस अगेन द क्वेश्चन इज इजी, क्वेश्चन इज इजी, आसान है भाई, बट इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू आर कंफर्टेबल, मतलब हर किसी से नहीं होगा ये, अगर कंफर्टेबल है तो आसान है, नहीं तो राउंड 2 है। तो फॉर समवन इट इज राउंड 2, फॉर समवन इट विल बी राउंड 2, मेरे लिए राउंड 1 है ये। चलो गाइस नेक्स्ट, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। पहली नजर में तो मैं क्लीन बोल्ड हो गया, क्लीन बोल्ड, सो दैट मीन्स राउंड 2, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं देखकर तो गाइस राउंड 2 नॉट राउंड 1 एट ऑल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस, अगेन राउंड 2, काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा यार समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अनइक्वल सर्कल्स ए बी एंड सी डी कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट, ये वो ज्योमेट्री है क्या, अच्छा ज्योमेट्री है तो राउंड 2 समझना पड़ेगा ना यार पढ़ के क्या हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन, 2 cars आर परपेंडिकुलर रोड्स टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो अगर लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपके 15 मिनट में टाइम बचा है तो राउंड 1 नहीं तो राउंड 2, बस 15 मिनट का राउंड 1 लगाना होता है आपको, दैट्स ऑल गाइस। सो दैट्स इट गाइस। अब आप मुझे बताओ हाउ आर यू फीलिंग, कैसा लग रहा है आपको, हाउ आर यू फीलिंग, इज इट इजी टू स्कोर, इज इट इजी टू स्कोर।
मॉक में स्कोर करना आसान लग रहा है कि नहीं? थैंक यू दावेद। व्हाट शुड बी द टारगेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन वन राउंड? 15 मिनट 15 क्वेश्चन सौम्या, 15 मिनट 15 क्वेश्चंस, आसान वाले 15 करने हैं। कोई बात नहीं हर्ष, 10 तो होंगे भाई। अगर आपने आपने राउंड 1 लगाया, आपसे 15 क्वेश्चन नहीं हुए, सिर्फ आपसे 10 ही क्वेश्चन हुए यार, तब भी तो बड़ा काम कर दिया आपने। 30 मार्क्स आ गए, और क्या चाहिए बताओ? हर किसी से 15 नहीं होंगे, 10 तो होंगे। और अभी आपके पास 45 मिनट बचे हैं, 45 मिनट लेफ्ट। ठीक है, दैट्स इट। 10 नहीं होंगे कोई बात नहीं, 7 होंगे, 8 होंगे, कुछ भी होगा तो बढ़िया स्कोर आएगा यार। 25 नंबर आ गए आपके। इज इट फाइन? तो ये जो मैंने आपको बताया है ना, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस स्ट्रैटेजी गाइस। प्रैक्टिस करो भाई, राइट? वेरी गुड अदाविद। अदाविद तुम्हारे कितने नंबर आए? अदाविद सौम्या तुमने टेस्ट दिया होगा ना, कितने कितने नंबर आए? 124। वेरी गुड अदाविद। तो अब तो तुम्हारे 150 से पार होने चाहिए अदाविद। आफ्टर दिस स्ट्रेटजी सेशन you should be able to cross 150. Yeah, this is a target for you. In the next test you have to cross 150. फाइन गाइस। चलो गाइस, और बताओ, और कुछ पूछना है आपको? या यू हैव 6 days। स्ट्रेटजी से आ जाएंगे यार। देखो, अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है ना, माय नेम इज प्रवीण त्यागी। यू कैन सर्च माय नेम ऑन अन अकेडमी। अन अकेडमी पे आप मेरे को सर्च कर सकते हैं, एंड यू कैन फॉलो मी एट अन अकेडमी। यू कैन मैसेज मी फ्रॉम अन अकेडमी ऐप, एंड यू कैन सी ऑल माय क्लासेस। यू कैन सी ऑल माय क्लासेस। मेरी बहुत सारी क्लासेस पहले से हैं रिकॉर्डेड, प्लस में भी हैं और फ्री क्लासेस भी हैं। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप ये क्लासेस कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपने कभी प्लस करने का डिसाइड करो तो गाइस पीटी सर 10 कोड जरूर यूज कर लेना। कौन कोड भी याद कर लो, पीटी सर 10, या तो कहीं नोट कर लो या पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। इफ यू एवर डिसाइड टू ज्वाइन एन अकेडमी प्लस, काइंडली यूज माय कोड। आपको मिलेगा डिस्काउंट और मेरे को मिलेगा नाम। मेरे को चाहिए नाम। अभी मेरा अन अकेडमी में रैंक क्या है? माय रैंक ऑन अन अकेडमी इज नंबर 3, राइट? अभी मेरे को नंबर 1 पे जाना है ना, तो नंबर 1 पे जाने के लिए बहुत सारे अच्छे बच्चे की जरूरत है मेरे को। यस यस चंदन, यस इट्स फ्री। सो आई, और मुझे अभी 5 महीने हुए हैं, मुझे अभी 5 महीने हुए हैं ज्वाइन करे हुए, ओनली 5 months। मेरे से पहले जो जो सर अभी नंबर 1 पे हैं, उनको अन अकेडमी में 2 साल से ज्यादा हो गया, मोर देन 2 years। बट बट गाइस, मुझे पता है कि आपकी सहायता से, आपकी मदद से मैं जल्दी ही नंबर 1 पे पहुंच जाऊंगा, राइट गाइस? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दैट्स ऑल। कोई बात है तो मेरे को मैसेज करना। यस, कोई बात आए तो पूछना हो, मैसेज करना। क्षितिज पूछ रहे हैं मॉक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्षितिज, अगर आपने 50% सिलेबस कर लिया ना तो मॉक देना चाहिए। 50% सिलेबस नहीं करा तो मॉक नहीं देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ाई तो कुछ तो आना चाहिए ना, शॉर्टकट वगैरह कुछ तो आपको आना चाहिए, तो तभी आप लगा पाओगे जब आप 50% सिलेबस कर लोगे। सो गाइस, सीरियसली माय एडवाइस इज टेक द टेस्ट। या 9:30 बजे में मेरा बैच चल रहा है। यस, नंबर सिस्टम चल रहा है चंदन। सैटरडे संडे में नंबर सिस्टम होता है। Saturday and Sunday, I teach number system in that batch. And weekdays पर मैं पढ़ा रहा हूँ मॉडर्न मैथ्स। 18 मई से स्टार्ट होगा अर्थमेटिक। 18 मई से स्टार्ट होगा अर्थमेटिक। यू कैन एनरोल इन द कोर्स। फाइन गाइस, ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं बढ़िया नंबर लेकर आओगे आप। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।
बाय बाय।